Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Ben Jonson, who was born on 11 June 1572 and was died on 6th of August 1637. So, we are going to discuss his one of the famous play, Volpone, which was published on 1606. It was from Jacobean age. It is a comedy play. Ben Jonson, as Benjamin Jonson, is a unique figure in many ways. He was born a posthumous child. Posthumous means जिनका जन्म उनके पिताजी के मरने के बाद होता है, ठीक है. जैसे किसी वजह से किसी के फादर अगर डेथ हो गए और काफ़ी समय बाद जब उन बच्चे का जन्म होता है तो उसे पोस्थोमियस चाइल्ड कहते हैं. जॉनसन्स फ्रॉम एजुकेशन was in a private school in St. Martin's Church, whence he was sent to Westminster School. Jonson's career proper as a dramatist, as he himself convinced it, began with Every Man in His Humour, which was produced by the Lord Chamberlain's men with great success at the Curtain Theatre in September 1598, of which Shakespeare was a member. Volpone. Volpone was first performed by the King's Men in 1605, and after some time it was performed both at Oxford and Cambridge and was highly applauded there. Volpone is a sage satire on human avarice for gold or greed for wealth. It is rightly said that the world of Volpone is crudely materialistic and gold-centered. So basically यहाँ पे वोल्पोनी कब परफॉर्म हुआ था ये बताया जा रहा है, एंड वोल्पोनी की जो मेन थीम है इसके बारे में बताया जा रहा है. इट मीन्स वोल्पोनी का जो मेन थीम है वो गोल्ड, ग्रीड, वेल्थ इन सब से रिलेटेड है. कैरेक्टर्स इन दिस प्ले आर वोल्टोर, कर्बाशियो, बोनारियो, लेडी वुडबी, सर पॉलिटिक वुडबी, एंड्रोगानियो, Castron, the Avocatori. Volpone, of course, protagonist of the play. Mosca, Volpone's servant. Celia, wife of Corvino. Nano, Adolphe. Corvino, vicious and dishonorable character man. Peregrine, a young English traveller. The first 27 lines, which contain Volpone's celebrated invocation to gold, set the pattern of the play. The play opens at the house of Volpone, a Venetian nobleman. In his pursuits of wealth, Volpone is helped by his parasite Mosca. There were some visitors. So the first one is Voltaire, a lawyer. The second one is Corbaccio. The third visitor is Corvino. The fourth visitor is Sir Politic Woodby and his wife. The next is Celia, who is taken by her husband Corvino. So it is a 5-act play. Volpone is a very rich man. He has no wife, parent or kinsman to whom he can bequeath his wealth. So अब प्ले स्टार्ट हो रहा है. ये एक 5-act प्ले है, ठीक है. तो वोल्पोन यहाँ पे क्या है? प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले में, इट मीन्स हीरो. और वोल्पोन एक बहुत ही वेल्दी पर्सन है, बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन है, एंड उसके पीछे, और वो बहुत थोड़ा अब एज हो चुकी है उसकी, ठीक है. लेकिन उसके पीछे उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सेदार कोई नहीं है. वोल्पोन ना ही मैरिड है, ना ही उसका कोई
पेरेंट बचा है, ना ही कोई भी उसका रिलेटिव है जो उसके प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। So Volpone and Mosca were so greedy and still they fool people and make money. So यहाँ जो वोल्पोन है उसका ये मॉस्का जो है स्लेव है, सर्वेंट है, आप जो भी कह सको, और इन दोनों की जो पार्टनरशिप होती है ना, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं, गोल्ड ऐंठते हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें करते हैं। जो उनके यहाँ फर्स्ट विजिटर रहते हैं वोल्टोर, जो कि एक लॉयर है, ठीक है, ब्रॉट अ गोल्ड प्लेट एज अ प्रेजेंट। तो क्या करता है वहाँ पे, वो आता है और उसके लिए एक प्रेजेंट लाता है जो एक गोल्ड प्लेट रहता है। जैसा यहाँ पे एक स्टोरी की शुरुआत में बताया जा रहा है कि वो वोल्पोनी एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि हम बहुत बीमार है, अब मेरी ज़िंदगी थोड़ी दिन की है, अब कुछ हो ही जाएगा, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं किसी के नाम के पे करूँगा। तो ये सोच के ना आसपास के जो लोग हैं, जो भी उसके कनेक्शन में, वो लोग आते हैं कि शायद वोल्पोन मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर दे। तो उसे खुश करने के लिए नई नई चीज़ें देते हैं, कोई उसे गोल्ड देता है, कोई उसे पर्ल देता है, बहुत तरह की चीज़ें उसे लालच देते हैं कि शायद ये मरने के पहले इसका जितना भी विल है, प्रॉपर्टी है, मेरे नाम करके जाए। सो वोल्पोन प्रिटेंड्स टू बी सफरिंग फ्रॉम सेवरल डिजीजेस। तो वोल्पोन का क्या है, वो एक बेड पे है जो उसको सिक बेड बोलता है। क्योंकि वो बहुत बीमार है और पूरे टाइम उसी बेड पे लेटा रहता है और प्रिटेंड करता है वोल्टोर के आने पे कि मैं तो ऐसा बहुत बीमार हूँ, अब ये है वो है। Mosca tells Voltaire that he will be the Volpone successor। और मॉस्का क्या करता है, उसी समय वोल्टोर को बोलता है कि वोल्पोन के जो सक्सेसर हो ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सब एक दिन देखना तुम्हारे ही नाम होगी। तो वोल्टोर को ना बहुत अच्छा फील होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मेरा कितना अच्छा लक है, ये सब करके वो चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है कोर्बैशियो की, ठीक है। तो मॉस्का क्या कहता है कि वोल्पोन बहुत दिनों से सोया नहीं है, इवन वो कल की रात भी नहीं सोया, उसे परसों भी नींद नहीं आई थी। तो कोर्बैशियो कहता है कि दैट ही हैज़ ब्रॉट अ स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग फ्रॉम हिज ओन डॉक्टर। तो वो भी उसको मस्का लगाने के लिए कह रहा है कि मैंने भी अपने डॉक्टर से बात करी थी और उसी से मैं ये कुछ दवाइयाँ लेके आया हूँ जिससे वोल्पोनी को नींद आएगी और उसे अच्छा लगेगा। Corbuccio wants to know if Volpone has drawn his will and Mosca tell him that Volpone has not made his will as yet। तो उसी दौरान क्या होता है, कोर्बैशियो मॉस्का से पूछना चाहता है कि क्या वोल्पोनी तो अब तो ये इतना बीमार है, तो कब रहेगा, कब चला जाएगा, तो कोई ठीक नहीं है, तो क्या अब इसने अभी तक अपना विल बना लिया है, उसमें कंफर्म कर दिया है कि किसे ये अपना सारा प्रॉपर्टी देने वाला है। तो मॉस्का कहता है नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इसने। उसी समय कोर्बैशियो क्या कहता है, कोर्बैशियो को पता चलता है कि उसके आने के पहले वोल्टोर आया था और उसके लिए एक गोल्ड प्लेट दे के गया है। तो अब कोर्बैशियो को थोड़ा डर लगने लगता है कि शायद कहीं वो सारी प्रॉपर्टी वोल्टोर के नाम तो ना कर दे। देन कोर्बैशियो ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही हैज ब्रॉट अ बैग फुल ऑफ ब्राइट गोल्ड कॉइन्स विच विल क्वाइट आउटवेट वोल्टोर्स प्लेट। सो उसी समय सडन कोर्बैशियो अपना चेंज करता है थॉट और कहता है कि मैं भी एक फुल ऑफ बैग गोल्ड लेके आया हूँ जिससे जो वोल्टोर की प्लेट है ना, उससे कई ज़्यादा कीमती और कई ज़्यादा अच्छी है वो। As soon Corbaccio leaves the house, Volpone jumps out of his bed. He compliments Mosca for the admirable way in which he is carrying on their play of killing people. So जैसे ही क्या होता है, कोर्बैशियो लीव कर जाता है, वहाँ से चला जाता है, तो मॉस्का जो अपनी वो झूठी बेड पे, जो सिक बेड पे लेटा हुआ था, वो जंप करके आता है मॉस्का के पास और मॉस्का को बहुत शाबाशी देता है कि अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा हमने कितने अच्छे से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया और हमारे पास इन लोगों ने एज अ प्रेजेंट कितनी सारी गोल्ड की चीज़ें दी हैं। द थर्ड विजिटर इज कोर्विनो द मर्चेंट। Corvino says that he has brought a pearl as a present for Volpone। कोर्विनो क्या कहता है कि मैं तो वोल्पोनी के लिए बहुत अच्छी, बहुत कीमती पर्ल लेके आया हूँ।
उसी दौरान कॉर्विनो भी बोलता है कि मॉस्का से बात करते हुए कि मुझे वोल्पोनी की इस सिचुएशन को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसे सिंपैथी देने की कोशिश करता है एंड अगेन ये भी बुलवाने की कोशिश करता है कि क्या वोल्पोनी ने अभी तक अपना विल बनाया है क्या। और उसी दौरान क्या होता है, मॉस्का took advantage of the fate that Volpone was calling the name of Corvino and had him written down as the sole heir to all Volpone's property. Corvino is very happy to hear this and embraced Mosca. उसी दौरान मॉस्का ने भी चाल चली, उसने भी बोला कि अभी तक तो इसने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये तो अनकॉन्शियस था, फिर भी ये तुम्हारा ही नाम लिया जा रहा था। तो उसने क्या किया, उसे भी बेवकूफ बना दिया, बढ़ा चढ़ा के बातें बता दी। और उसमें क्या होता है, कॉर्विनो भी बहुत खुश हो जाता है और मॉस्का को इम्प्रेस करता है और वो चला जाता है। Just then, somebody knocks once again and Volpone is informed that the new visitor is Lady Woodby, wife of the English knight Sir Politic Woodby. But Volpone says that he is now not in a mood to receive any more visitors. जैसे ही कॉर्विनो जाता है वैसे ही एक और विजिटर आते हैं, सर पॉलिटिक वुडबी एंड उनकी वाइफ आती है। बट वोल्पोनी क्या कहता है कि अब वो किसी से मिलने के मूड में नहीं है, तो उनको कहो कि कुछ समय बाद आए, ठीक है। एंड आफ्टर नेक्स्ट मॉस्का सेज इफ शी हैड अ ब्यूटीफुल फेस लाइक that of Signor Corvino's wife Celia. Volpone's curiosity is aroused and he wants to know more about the beauty of Celia. So उसी दौरान क्या होता है, जब सर पॉलिटिक वुडबी आते हैं और उनकी वाइफ आती है तो उसने मिलने से मना कर दिया। तो मॉस्का भी कहता है हाँ इसकी वाइफ में कुछ ऐसी खास बातें तो है नहीं, अगर ऐसी होती सीलिया की तरह होती, कॉर्विनो की जो वाइफ थी सीलिया उसकी तरह होती तो कुछ एक बात भी होती। तो जैसे ही मॉस्का ने ये सारी चीजें कही, वोल्पोने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई सीलिया के बारे में जानने के लिए। मॉस्का साइंस her praises and says that she is the blazing star of Italy, a woman in the prime of her youth and ripe for enjoyment. और मॉस्का क्या किया, उसने धीरे धीरे सीलिया की बहुत बढ़ चढ़ के बातें बोलने लगा, ऐसी है, इतनी सुंदर है, शी इज वाइटर देन ए सॉन एंड ब्राइट एंड लवली एज वोल्पोन्स गोल्ड। तो वोल्पोनी को ये सब सुन सुन के और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि मुझे तो अब सीलिया से मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसने सोचा कि कुछ तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मुझे सीलिया से मिलना होगा। देन वोल्पोनी मेक्स अ प्लान टू सी सीलिया इन द डिस्गाइज ऑफ स्कॉटो ऑफ Mantua, the famous Italian juggler and mountebank. तो वोल्पोनी ने माउंटबैंक का चेहरा लिया, इट मीन्स कि उसने अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया, क्योंकि अगर वो इसी तरह चला जाता तो उसकी जो झूठ थी वो पकड़ा जाती कि वो तो कुछ बीमार है नहीं, ऐसे ही घूम रहा है बिल्कुल ही। तो उसने थोड़ा एक जगलर का नकाब लिया और चला गया सीलिया से मिलने के लिए, ठीक है। Mosca and Nano set a platform for Volpone's performance under the window of Corvino's house. तो उसके कॉर्विनोस के हाउस के नीचे ही, ठीक है, उसी के विंडो के आसपास उन लोगों ने परफॉर्मेंस के लिए एक सेट बना लिया। Volpone, disguised as a mountebank, comes and mounts the platform, ठीक है। In the beginning he says that he has nothing to sell, but soon afterwards take out a bottle of some precious liquor which he claims to be a great restorative of health and a kind of panacea or an infallible remedy for all diseases. तो उसे परफॉर्म जो करना था, तो शुरुआत में क्या किया, उसने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आफ्टर अ सडन वोल्पोनी ने कुछ लिकर्स निकालने शुरू किए, जिसको उसने कहा ये बहुत ही प्रेशियस लिकर है, बहुत तरह की जो बीमारियां होती हैं ये उसे ठीक कर देगा, बहुत समय से लोग परेशान हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, इसे भी ये ठीक कर सकता है। He also says that the first person who throws a handkerchief to him would get some very precious thing free from him as a remembrance. Celia, peeping out of her window, becomes interested in the mountebank stock and throws her handkerchief to him. Volpone very gladly takes it, kisses it and offers to give her, in addition to the oil, a miraculous power that can keep
anybody perpetually young. तो सीलिया ये सब सुन रही थी और उसी दौरान वोल्पोनी ने ये भी कहा कि अगर कोई इसे सबसे पहले मेरे पास हैंकरचीफ फेंकता है तो उसे इन सारे अच्छे दवाइयों के साथ कुछ प्रेशियस चीज़ भी मिलेगी। तो सीलिया अपने विंडो से खड़ी होकर ये सारी चीज़ें सुन रही थी और उसी दौरान उसने अपना हैंकरचीफ फेंक दिया और उसे देखते ही वोल्पोन बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। उसने उसे हैंकरचीफ पे किस किया एंड उसे बोला कि मैं तुम्हें ये सारी दवाइयाँ भिजवा रहा हूँ और एक ऐसा मिरेकुलस पावर दे रहा हूँ जिससे लोग यंग रहेंगे। एंड इट इज़ अ सीक्रेट ऑफ अर परपेचुअल यूथ बट वोल्पोनीज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ माउंटेबैंक सडनली कम्स टू एन एंड। और क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है और उसके बाद वो उन लोग का जो भी प्लान था, जो भी ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, एंड पे आ जाता है। व्हेन कोर्विनो अपीयर्स ऑन द सीन, अब कोर्विनो की अपीयरेंस होती है, ठीक है। He rushes upon him and scolded him for gathering a crowd in front of his house and bring disgrace on him by attracting his wife. और उसी दौरान कोर्विनो क्या कहता है कि तुम मेरे घर के नीचे ये सारी जो चीज़ें कर रहे हो ये सब ठीक बात नहीं है, ये सब बकवास है, इसको लेके जाओ। क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि किसी के भी घर के नीचे या आसपास ये सारी चीज़ें अगर कोई करता है विदाउट परमिशन तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ें हुई। वोल्पोनी हैज़ बीन सफिशिएंटली बीटन बाई कोर्विनो। इवन कोर्विनो ने वोल्पोनी को बहुत ज़्यादा मारा था, बट उसे तो ऐसा लग रहा था प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, तो उसे फिजिकल जो उसकी जो प्रॉब्लम थी, वुंड्स थी, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो एनी टाइम सीलिया के ही बारे में सोचता रहा और मॉस्का से कहता रहा कि मुझे किसी भी हालत में सीलिया से मिलना है। Mosca leaves for Corvino's house thinking of some plan to fulfill the wishes of his master. तो मॉस्का ने कहा ओके कीप सम पेशेंस, मैं कुछ करता हूँ। तो मॉस्का वहाँ से जा रहा था कोर्विनो के हाउस के लिए और कुछ प्लान सोच रहा था कि कैसे वो अपने मास्टर मतलब वोल्पोनी की विश को पूरा करे, ठीक है। कोर्विनो इज बिसाइड हिमसेल्फ विथ रेज एंड एंगर एट हिज वाइफ। तो उस समय क्या होता है, कोर्विनो जब वापस घर पे आया था, सीन में आया था, तो वो अपनी वाइफ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है कि ये सब क्या हरकतें हैं, क्या तुम हैंकरचीफ फेंक रही हो विंडो से, ये सब ठीक बात नहीं है। ही स्कॉल्ड हर बिटरली, मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ sarcastic vulgar remarks about her and threatens her to of dire consequence of thus damaging his honor। और बहुत उल्टी सीधी वल्गर चीज़ें बोली, उसके मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचाया है, ठीक है। The next, a servant announces the arrival of Mosca। ठीक है, तो सर्वेंट ने अनाउंस किया कि मॉस्का आ रहा है। कहाँ आ रहा है? कोर्विनो के घर पे। एंड मॉस्का ने बताया कि कुछ फिजिशियंस ने बताया है कि in the end all of them agreed there was only way to restoring Volpone to health, and that was to find out some strong, vigorous and youthful women to sleep by him। तो वो मॉस्का क्या बताता है कि हमारे फिजिशियंस ने सजेस्ट किया है कि कोई यंग यूथफुल जो वुमेन है, बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग वुमेन वोल्पोनी की अगर नेक्स्ट टू स्लीप करेगी तो शायद वो पहले से काफ़ी बेटर हो सकता है। तो मॉस्का इस तरह से कोर्विनो को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ तुम्हारे पास ऐसा कुछ आइडिया है तो बताओ। तो कोर्विनो उसे एक प्रोस्टिट्यूट के लिए सजेस्ट करता है, बट वो मानता है कि नहीं, कुछ ऐसी अच्छी लड़की होनी चाहिए, यंग वर्जिन होनी चाहिए। इवन डॉक्टर ने अपनी बेटी को ही सजेस्ट किया था, बट उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मॉस्का बार बार अलग अलग तरह से एग्जाम्पल्स देके कोर्विनो को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपनी वाइफ के लिए सोचो, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और उसमें भी वो किसी तरह बोल रहा है कि शायद अगर कोई अच्छी लड़की आएगी तो शायद मेरे जो मास्टर है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दे। Then Corvino calls his wife and tries to convince her that his shows of anger and was non-serious and he rebuked her only to test her fidelity on him। So अब क्या होता है, कोर्विनो ने अपने वाइफ को बुलाया और बोलता है कि ये सब छोड़ो, जो मैंने गुस्सा किया है तो ऐसे बेतुकी बातें हैं, ऐसे ही मैंने बोल दिया गुस्से में, कुछ सीरियस नहीं है, हमें वोल्पोनी के घर जाना है तो तुम रेडी हो जाओ, ठीक है।
तो उसने बोला कि क्यों जाना है, तो वो बता ही नहीं रही है कि आखिर क्या करना है नहीं करना है। देन मॉस्का लीव्स फॉर हिज मास्टर्स हाउस, और जब मॉस्का अपने मास्टर के हाउस के लिए जाने को निकलता है, उसी दौरान उसे बोनारियो मिलता है जो कि कॉर्वेशियो का बेटा रहता है। तो बोनारियो हालांकि मॉस्का से बात करने के लिए कुछ अग्री नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि मॉस्का बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंडेड था, वो सबको ऐसे ही मैनिपुलेट करता था किसी ना किसी तरह, तो उसने उसे भी मैनिपुलेट कर लिया कि तुम्हारे फादर तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट करने वाले हैं, तो तुम क्या जानो। तो वो उसे विश्वास तो कर नहीं रहा था, बट मॉस्का ने उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई, कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाए जिससे उसे विश्वास होने लगा। बेसिकली वो डिवाइड एंड रूल कर रहा था कॉर्वेशियो और उसके बेटे बोनारियो में। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है कॉर्वेनो इज इम्पेशेंट नॉट टू lose this opportunity and therefore he comes to Volpone's house with his wife। अब कॉर्वेनो अपनी वाइफ के साथ वोल्पोनी के हाउस फाइनली आ गया। Corvino in the meantime talked to his wife Celia and tells her the real reason for bringing her to Volpone's house। और फाइनली उसने सीलिया को एक रियल रीज़न बताया कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो सीलिया वो सो एंग्री कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें थोड़ा भी ऐसा सेंस है कि नहीं, ये सारी जो तुम चीज़ें बोल रहे हो ये सब बहुत ही गलत है। सीलिया फील्स वेरी रिच and says that she is ready to kill herself rather than to commit such a sin। और वो कह रही है कि इस तरह की चीज़ें ये जो कर रहे हैं ये पाप है, ये करने से अच्छा मैं अपने आप को मार लूँ, ठीक है। लेकिन फिर कॉर्वेनो कहता है कि शायद मैं इस रूम में हूँ इसीलिए सीलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है। तो कॉर्वेनो और मॉस्का दोनों रूम से बाहर चले गए। अब रूम में सिर्फ सीलिया एंड वोल्पोनी थे। Even Volpone first tried to make her hate her husband for the greedy nature in the sending her to him only in the hope of gain। तो क्या होता है, वोल्पोनी अपने जो वो झूठे सिक बेड था उससे उठ के आता है और सीलिया के मन में बहुत सारे सवाल को भर देता है, अपने हस्बैंड के लिए डिस्ट्रस्ट पैदा करने की कोशिश करता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, कुछ पैसों के लिए तुम्हें इस चीज़ के लिए भेज दिया, ऐसे ऐसा कर दिया। लेकिन सीलिया मानने को तैयार नहीं होती है। He then tries to tempt her by offering all her wealth and all the luxuries and pleasure of the world। और फिर क्या करता है वो उसे सारे वर्ल्ड के प्लेजर लग्जरी ऑफर करता है कि नहीं मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हारे नाम सारा कुछ कर दूंगा, बट वो फिर भी अग्री नहीं होती है। उसी समय बोनारियो कहीं से आता है एंड बोनारियो सक्सीड इन रेस्क्यूइंग सीलिया एंड लीड्स हर आउट टू द वोल्पोनीज हाउस। और इसी दौरान बोनारियो आ जाता है और वो सीलिया को किसी तरह बचा लेता है और वोल्पोनी के घर से बाहर लेके जाता है। वोल्पोन फील्स ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड एट द मिसचांस एंड फियर्स टू बी एक्सपोज्ड, डिफेम्ड एंड रूइंड। अब वोल्पोनी को लग रहा था अब तो उसकी सच्चाई, क्योंकि बोनारियो आ गया था, अब तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब उसे बहुत डर लगने लगा कि अब करेंगे क्या। इवन मॉस्का हैज़ बिन वुंडेड बाय बोनारियो। तो बोनारियो ने जाते जाते मॉस्का की भी बहुत सारी पिटाई करी दी। अब उन सबको डर लग रहा है कि क्या करना है, कैसे होगा, अब हम फंस तो नहीं जाएंगे। ही टेल्स कॉर्वेशियो दैट his son somehow came to know that of his intentions of disinheriting him। He forcibly entered the house with a drawn sword in his hand, looked about for him, called him a wretch and an unnatural father। अब क्या होता है, वो कॉर्वेशियो से मिलता है और उसे बताता है कि किसी तरह तुम्हारे बेटे को पता चल गया है कि तुम शायद उसे अपने प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर रहे हो, और वो गुस्से में एक शॉट लेके आया था, घर में आ गया था वोल्पोनी के घर में और तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है और तुम्हें अननेचुरल फादर भी कह रहा है। कॉर्वेशियो इज वेरी एंग्री एट हिज सन्स बिहेवियर एंड सेज दैट नाउ ही विल डिसइनहेरिट हिम इन रियलिटी। He then hands over his will to Mosca। अब क्या कह रहा है कि अरे ऐसा किया उसने, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब तो वो कह रहा है कि अब तो मैं सच में बोनारियो को अपनी प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट ही कर दूंगा, मैं सच में उसे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं रखूंगा। And on the next side,
वोल्पोनी बहुत ही डरा हुआ था कि शायद अब वो एक्सपोज हो जाएगा। तो क्या होता है, वोल्पोनी ने सबको अपने साइड कर लिया, कोर्वाशियो को, कोर्विनो को एंड वोल्टोर को, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा करके सबको अपनी साइड कर लिया कि हमें कोर्विनो और उसकी वाइफ सीलिया को और बुनारियो को, इन तीनों को फंसाना है एक टाइम के लिए। ये सब सुनने के बाद कोर्विनो बोलता है कि नहीं, एक तो तुमने गलत किया, ऊपर से हमें फंसा भी रहे हो। तो वो उसे भी मैनिपुलेट करता है एंड कोर्विनो को भी अपने साइड कर लेता है एंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट खड़ा कर देता है कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है, कोर्विनो, कोर्बाशियो एंड वोल्टोर वोल्पोनी के साइड हो जाते हैं एंड जब मास्टर्स जो जज होते हैं कोर्ट के, वो बोलते हैं कि वोल्पोनी को प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि बोनारियो ने बोल दिया था वोल्पोनी कोई बीमार नहीं है, ऐसे ही नाटक कर रहा है। लेकिन मॉस्का ने कहा सर हमारे जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वीक है, वो कैसे आएंगे कोर्ट में। लेकिन फिर भी जज ने कहा कि नहीं, एक बार तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो वो प्रेजेंट तो हो जाते हैं। फिर जज देखते हैं कि हाँ, ये तो सच में बीमार है, क्योंकि उसने अपना गेटअप ही ऐसा बनाया था। तो वो उसे छोड़ देते हैं और सीलिया को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है कि उसके हस्बैंड उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। एंड फाइनली कोर्ट ने सीलिया और बोनारियो को सजा सुना देती है। Now the next part, Volpone is very happy that all the crisis is now over. He is alone in his house and reflects over the past happenings. अब वोल्पोनी बहुत ही खुश है कि चलो जो भी प्रॉब्लम्स थी अब ठीक हो गई, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। He asks Mosca to call forth Castron and Nano. When they come, Volpone order them to go in the streets and make an announcement that Volpone is dead. अब क्या करता है वोल्पोनी, उसे अब तो लग रहा था सारी चीज़ें ठीक हो गई है, उसने 2 लोगों को बुलाया और अनाउंस करवा दिया कि वोल्पोनी डेड हो चुका है, मतलब मर गया, और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो मॉस्का के नाम कर दिया। अब तो कोर्बाशियो, कोर्विनो और जो वोल्टोर थे, उन तीनों को बहुत गुस्सा आने लगा कि एक तो हमने तुम्हारा सपोर्ट किया और तुमने ऐसी सडन ऐसा अपना विल चेंज कर लिया और अपने मॉस्का के नाम कर दिया, ये सब ठीक बात नहीं है। तो वो लोग बहुत ही ये होने लगे। द फर्स्ट टू कम इज वोल्टोर द लॉयर। वोल्पोनी इमीडिएटली हाइड्स हिम behind the curtain and Mosca assumes his position at the desk and start making an inventory of various articles. उसी दौरान क्या होता है, तीनों गुस्सा होके वहाँ आते हैं। फिर जैसे ही वहाँ आते हैं तो वोल्पोनी क्या करता है, कर्टन के पीछे छिप जाता है और सारी एक्टिविटीज़ को देखता रहता है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, अब क्या होता है, सीलिया और बोनारियो को जो सज़ा मिल रही थी उसको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जैसे ही वोल्पोनी ने मॉस्का ने जो र्यूमर उड़ाया था कि वोल्पोनी अब डेड हो गया है, तो कोर्बाशियो, कोर्विनो और वोल्टोर जो थे, तीनों आपस में ही लड़ रहे थे और मॉस्का से क्वेश्चन कर रहे थे। नाउ मॉस्का प्लेड अगेंस्ट हिज मास्टर। अब क्या होता है, मॉस्का क्योंकि उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई है, तो अब वो अपने मास्टर वोल्पोन के ही खिलाफ हो गया। उसने अपनी चाल ही बदल दी। एंड कोर्ट में बैठ के जैसे ही वोल्पोन सारी चीज़ें देख रहा है और मॉस्का कंटिन्यू बोलता जा रहा है कि नहीं, मेरे मालिक जो मेरे मास्टर तो हैं वो तो अब मर चुके हैं, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी ही है। तो वोल्पोनी को ये सब देख देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड फाइनली उसकी जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो निकली। उसने अपनी जो भी उसने काम ये सब कर रखा था, जितने भी प्लान्स एंड प्लॉटिंग किए थे उसने वो खुद ही रिवील कर दिए सारी चीज़ें कि नहीं, मैं तो ऐसा जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे डिस्गाइज बन के बैठा हुआ था, दूसरे का रूप लेके यहाँ बैठा हुआ था और मैं, ये सारा प्लान मेरा था, मैंने इन लोगों को फंसाया है, ये सारी चीज़ें की हैं। अब क्या होता है, कोर्ट को सारी सच्चाई पता चल जाती है। जो जज रहते हैं उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती है, जैसे प्लॉट रिवेल्यूशन होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे 1 बाय 1 सबको सज़ा मिलनी शुरू हो जाती है। मॉस्का अरेस्ट हो जाता है परमानेंटली, मतलब उसकी जो पूरी लाइफ रहती है वो उसने जेल में ही काटनी है। वोल्टोर जो रहता है उसका भी लाइसेंस, क्योंकि वो लॉयर रहता है और एक गवर्नमेंट लॉयर होने के नाते उसने ये सारी चीज़ें की, तो उसका जो लाइसेंस रहता है वो कैंसिल्ड हो जाता है। कोर्बाशियो को बोला जाता है कि तुम्हें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे अपने सन के नाम करनी होगी और उसे भी सज़ा मिलती है। कोर्विनो को भी सज़ा मिलती है कि तुम
तुमने अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा गलत गलत बोला, उसके लिए इतने गलत स्टेटमेंट्स पास किए, तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा, ठीक है। एंड वोल्पोनी को तो जो सज़ा मिलती है, उसे तो सज़ा मिलती है, मौत तक की सज़ा मिल जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।